Hello everyone. So now we'll start with a new topic, acid, bases and salts. See, we have already studied the difference between acid and bases in our previous class. I'll recall that difference. Acids were sour in taste and bases are bitter in taste. Acids are usually sticky, bases are slippery in touch. जो हमारा लिटमस इंडिकेटर है, तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड बट बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. And in phenolphthalein indicator, acids remain colorless and bases give pink color. So when dissolved in water, acids increase the concentration of H plus ions, whereas the bases increase the concentration of OH ions. Why it is like this? See, acids are HCl, H2SO4. In this, concentration of H plus ions are more, whereas in bases, NaOH, KOH, here OH concentration is more. So this is the major difference between acid and a base. Here acids have H plus ions and bases have OH minus ions. Litmus is a natural indicator obtained from lichens. It is a natural indicator. Litmus gives blue litmus red in acid and red litmus blue in a base. Turmeric is also a natural indicator. It becomes reddish brown in base and yellow in acid. Litmus is neither acidic nor basic. When it is derived from lichens, its color is purple, but when we dip in a solution, then it changes its color. Many other natural indicators like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers like hydrangea, petunia and geranium. These are some natural indicators which we use in our daily life. So we have a question on page number 18. You have been provided with 3 test tubes. One contains distilled water, so we know distilled water is neutral, and other 2 contain acid and base. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? See, what we can do is we can label all the 3 test tubes as A, B and C. Drop each solution one by one. So, which turns blue? The solution which turns blue is basic in nature, so remaining 2 is either acidic or neutral. So we use this blue litmus paper to test other 2 test tubes. Solution from the test tube which turns blue litmus red is acidic in nature. हमने एक दूसरा ड्रॉप डाला, जैसे ही अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया तो वो तो एसिडिक होगा, और अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल और डिस्टिल्ड वाटर. So we have a table on 2.1. We have sample solution, acid and a base. We have been given different indicators, red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange. We have to tell what colors will it give when it did acid or a base is dipped in this solution. So red litmus, as we all know, acid it gives red, and base it will give blue. Blue litmus in acid will give red, because acid will always give red whether it is blue litmus or red litmus. Base it will give blue. Phenolphthalein we discussed, acid gives colorless and base gives pink color. Methyl orange, acid it is red and base yellow. So there are some different olfactory indicators also. What are olfactory indicators? Some substances whose odor means smell changes in acidic or basic media are known as olfactory indicators. Like what we'll do is we'll cut out thin strips of clean paper and we'll put chopped onions in it for overnight. If put in a plastic bag, these strips of cloth are used as indicators. तो अगर हम उस पर एसिड डालेंगे तो ऑनियन की स्मेल ख़राब नहीं होगी, बट अगर हम उस पर बेस डालते हैं तो वो ऑनियन की स्मेल वैनिश हो जाएगी. सिमिलरली ऐसे ही एक वनीला करके इंडिकेटर है जिसमें बेस में तो स्मेल वैनिश हो जाती है बट एसिड में वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी. सिमिलरली क्लव में भी बेस में तो स्मेल डिसअपियर हो जाएगी बट एसिड में वो स्मेल एज इट इज रहेगी एंड डू नॉट डिसअपियर. नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल रिएक्शंस व्हेन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद मेटल. सी, एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. हमने एक क्लैम्प पे स्टैंड पे लगा दिया, एक टेस्ट ट्यूब लगाई, उसमें व्हाट विल डू इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने पुट कर दिया, उसमें कुछ जिंक ग्रैनुअल्स डालिए. तो व्हाट विल ऑब्जर्व इज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल स्टार्ट एमिटिंग. जब वो हाइड्रोजन गैस हमने डिलीवरी ट्यूब से सोप सॉल्यूशन में डाले तो सोप बबल्स फॉर्म हुए जिसमें हाइड्रोजन गैस थी, एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड.
तो जब भी कैंडल्स हम उसके पास लाए उन बबल्स के पास, तो वो पॉप साउंड से बर्स्ट हो गए। तो व्हाट विल बी इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला इज H2SO4 प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जनरल इक्वेशन क्या हुई? एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड या बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, इट विल ऑलवेज लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बेस की भी इक्वेशन सेम है, हम सेम अपैरेटस ले सकते हैं कि NaOH में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। डिलीवरी ट्यूब से अगर हम सोप में डालेंगे तो सोप बबल्स फॉर्म होंगे विद हाइड्रोजन गैस एंड इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। सो इक्वेशन क्या हो गई? NaOH प्लस Zn gives Na2ZnO2 plus H2. ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सो बेसिक इक्वेशन इज बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो कुछ भी एसिड या बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, सो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो हम क्या करते हैं, वही सेम अपैरेटस कंसिडर करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम मेटल कार्बोनेट डालते हैं और टेस्ट ट्यूब बी में हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे। तो सी हमने क्या अपैरेटस सेट करा है, टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और सोडियम कार्बोनेट डाला है। सोडियम कार्बोनेट इज मेटल कार्बोनेट। तो हम ऑब्जर्व करेंगे CO2 गैस फॉर्म हो गई है और CO2 गैस अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब लाइम वाटर में पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है तो उससे वो मिल्की टर्न हो जाता है। तो इसमें हमारी इक्वेशन क्या होगी? Na2CO3, मतलब हमने सोडियम कार्बोनेट में जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करा है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिप करा तो इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो उसकी इक्वेशन क्या होगी? CaOH होल ट्वाइस दैट इज लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 प्लस H2O लिक्विड। तो ये तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की रिएक्शन हुई। अगर हम सेम अपैरेटस टेस्ट ट्यूब बी में लगाते हैं, हम अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करा, सेम रिएक्शन होगी, CO2 गैस लिबरेट होगी एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब डिप करेंगे तो वो इट टर्न्स मिल्की। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? NaHCO3 प्लस HCl गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकेंड ये जो टेस्ट ट्यूब है तो उसकी तो इक्वेशन सेम ही रहेगी क्योंकि हमने लाइम वाटर में ही पास करा है, तो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट which is calcium carbonate. So अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं जैसे CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड उसका कलर डिसअपेयर हो जाएगा। सो लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक जनरल इक्वेशन क्या हुई? मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमने दोनों के साथ इक्वेशंस देखी कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस अ सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो लास्ट ईयर भी पढ़ी थी कि जब वी आर फेसिंग एसिडिटी तो हमको बेस खाना चाहिए, जब सॉइल इज़ टू एसिडिक तो हमें उसमें बेस डालना चाहिए और बेसिक हुई तो उसमें एसिड मीडियम डालना चाहिए। सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल NaOH, ये तो बेस हुआ। HCl इज एसिड, गिव्स NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब हमारी सॉइल बहुत एसिडिक होती है हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जिससे हमारी सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारी सॉइल को खराबी ना हो। अगर हमारा सॉइल बहुत बेसिक हुआ तो हम उसमें मैन्योर डालते हैं जिससे वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होके और वो हमारा सॉइल की फर्टिलिटी सही हो जाए।
रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिया बीकर में और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम धीरे धीरे डालेंगे उसमें। तो वी विल नोटिस कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन किसकी वजह से बनता है, उसमें कॉपर क्लोराइड की वजह से, एंड कॉपर ऑक्साइड डिसअपियर्स। तो इक्वेशन क्या होती है, जब हमने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो CuCl2 + H2 वाटर फॉर्म हो जाता है। तो जो ब्लू ग्रीन कलर होता है वो इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ, वाटर इज फॉर्म्ड एंड अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, अभी हमने ये पढ़ा था ना इक्वेशन, कैल्शियम जब कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट कर रहे थे, हमने CO2 को गैस को उसमें पास कराया था लाइम वाटर में, तो इट टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म हुआ था। तो यही रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ है, क्योंकि ये बेस है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। So non-metallic oxides are acidic in nature. We have questions on page 22. Why should curd and sour substances be kept in brass and copper vessels? See, जो कर्ड और sour substances होता है उसमें एसिड होता है कर्ड। तो एसिड जो होता है वो जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करके अदर सब्सटेंसेस बना देगा, सो द फूड विल स्पॉइल। तो वही है, कर्ड एंड sour substances contain acid. So therefore, when they are kept in brass and copper vessels, metal react with acids to liberate hydrogen gas and harmful products, thereby spoiling the food. Second we have is, which gas is liberated when an acid reacts with metal? अभी हमने पढ़ा acid plus metal gives hydrogen gas and salt. तो Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। थर्ड, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. Gas evolved extinguishes a burning candle. जब भी burning candle extinguish होगी that means कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश कर देता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ होती है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो गई, CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 plus water. तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है वही हमारा एक्सटिंग्विश, जो कैंडल एक्सटिंग्विश हुई है यहाँ पर बर्निंग कैंडल, उसी की वजह से एक्सटिंग्विश हुई है। थैंक यू।